بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا تھا؟ دوستوں، کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دوستوں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح تو نہیں ہو سکتا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں اور ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا تھا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں، تو حضرت عائشہ کی جب بدائی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھیں، ان کی تفسیر کو سمجھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں حضور
जो जो करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थीं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थीं और आपका दिमाग बहुत तेज था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुम्मान मुझको पकड़कर घर के तरफ ले गईं और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया गया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। चूँकि उस समय में 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा के हिसाब से अच्छी खासी जवान नजर आया करती थीं और शादी के लायक हो जाती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बड़ी फजीलत थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थीं और आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी और सबसे कम उम्र की थीं। बाकी और जो भी हुजूर की बीवियां थीं वो या तो तलाकशुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियां हुजूर से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रह पाती हैं और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियात भी ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे, लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात की जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी, ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करें तो उसके साथ कैसे पेश आना है, वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा ही हैं। हज़रत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक हैं, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हसब व नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब यानी कि किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा हुआ था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब की ताबीर यानी कि सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप उसे फ़न कह लीजिए, कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मामला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल ना निकलता था तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते थे
और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वो किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर मौजूद थीं और जब नबी के घर आ गईं तो क्या ही कहने। जब नबी खुतबा दे रहे हैं तो हजरत सिद्दीक़ा सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हजरत आयशा सुना करती थीं। इस तरह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया था। यही वजह रही कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायतें मिलती हैं तो वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तकरीबन 2200 प्लस रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूंकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं जो एकदम से नहीं बताए जा सकते। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो जब हुजूर का निकाह हजरत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई औलाद अता नहीं की थी। इसमें हिकमत ये थी कि आपका दिमाग खुला रहे और आप ज़्यादा बिजी भी ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं। और कम उम्र होने की वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और आपने जब इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के वो मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई, ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। और तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्मे दीन सिखाया करती थीं। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया करते थे और हजरत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थीं। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को नहीं मिलता है। किसी मसले में हजरत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी है। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हजरत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेटकर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हजरत आयशा से
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ